To put it short, Milton model is about taking a person into trance through your words. Hypnotic commands use करके सामने वाले को आप आपके वर्ड्स में ला सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप उससे करा सकते हो, या पॉजिटिव वे में ही इसको हमेशा लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गेट योर थिंग्स डन, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू डू द होमवर्क, इफ यू वांट टू गेट सम थिंग्स डन फ्रॉम समवन इन द पॉजिटिव वे, यू कैन यूज हिप्नोटिक कमांड्स. जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग वाज लाइक meant for removing the resistance from the person. Like, our workshop was amazing, isn't it? तो वो हुआ क्वेश्चन टैग. नेहा की ड्रेस बहुत अच्छी है ना? That is a question tag. You should be able to frame it in all the languages. बट सामने पहले पॉजिटिव कमांड दे दो एंड फिर उसके आगे उसको क्वेश्चन लगा दो. Can I share one experience with this question tag, sir? Like बहुत फायदे, it will be very helpful. Pardon me? कभी भी ना उसकी तकलीफ रहती है, सिर्फ स्टमक एक रहता है, always she has stomach ache and constipation problem. She has problem with the people. My daughter, लोग से घुल मिलना भी नहीं चाहती है क्योंकि मतलब लोग उसे बहुत जज करते हैं, तो इसके लिए वो नहीं मिलती. And they have high expectations from her. And when she is sick, she is not able to. तो she stopped going to people. किसी से मिलती नहीं. तो आप जिस दिन शिकायत है ना, तो I use question tag. वो नींद से उठी, मैंने use no. She said okay okay, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. मतलब even without she knowing, she agreed to that. उसके बाद ऐसे हुआ कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं भी बाहर नहीं आती है, घर पे ही रहती है. पर ये जब उठी तो मैं जब क्वेश्चन टैग लगा के मैं बोली तो कंटिन्यूअसली शी सेड यस यस आई एम कमिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट. बट इवेंचुअली उसकी तबीयत खराब होने की वजह से शी डिडंट कम. बट you know, for at least for 1 hour she was saying yes yes I'm getting ready, yes yes I'm doing this, because I was continuously using question tag. मतलब it really works even if the person, you know, उसे पता भी नहीं चलता है कि generally she used to throw so much resistance. That day she didn't throw any resistance, but eventually she could not make it because she was not well. But she readily she agreed. I thought I will share that because it was like, you know, you say, yeah, I felt it was very helpful, sir. That's what I thought I'd share. नहीं, अच्छी बात है. And if you are using it regularly, it will definitely help, because finally it's all about bypassing the conscious mind and getting into a subconscious mind. तो बिल्कुल वो काम करेगा. Second thing which we had done was current pacing experience, जिसमें हम लोग सामने वाले क्लाइंट को, फ्रेंड को, किसी को भी, we take him into that current pacing, that as you are listening my voice, as you are sitting here, as you are sitting comfortably on your chair, as you are drinking the milk, as you are having a cup of tea, जो भी आप कहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब आप बताते हो, as you are sitting here, as you are listening my voice, as you are having your cup of tea, as you are listening me, as we are attending the class together, जो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहोगे वो सामने वाला उस रैपो में आ जाता है. एंड देन यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स इन द राइट वे. As you are listening my voice, I know you have already started practicing NLP in your daily life. Also, I know, knowingly, unknowingly, you will realize sooner or later that this course was helpful to you. While you are listening to me, you have already started calculating in your mind where exactly you can use it. तो इस तरह से आप sentences खुद के बना सकते हो. फिर हमने सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जो देखा था, मतलब ये जो कमांड होती है, कैन यू प्लीज क्लोज द डोर. इट्स अ कमांड जो रिक्वेस्ट के तौर पे दी गई कमांड, जिसको कन्वर्सेशनल पोस्टुलेट कहा जाता है. कन्वर्सेशनल पोस्टुलेट इसके नोट्स में शेयर कर दूंगा सारे आज रात को, डोंट वरी. कन्वर्सेशनल पोस्टुलेट में हम लोग कमांड देते हैं रिक्वेस्ट के तौर पे, एंड द पर्सन एक्सेप्ट्स इट. कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, कैन यू प्लीज कम इनसाइड. इट्स अ कमांड.
बट इसमें आप शुरू में ही इसको रिक्वेस्ट दे देते हो, सो दैट बिकम्स अ कन्वर्सेशनल पोस्टुलेट। तो नोट्स आपने शेयर किया है? हाँ, शेयर किया है, और जो हाँ, बचे हुए उसमें हैं, है सर, उसमें है सर। बचे हुए जो हैं वो और आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएगा आज कल में। whatever I have, I will share it everything with you. Then I want someone of you to make a sentence with current pacing experience and double bind. कौन करेगा सेंटेंस? यहीं पे बनाना है अभी। सर डबल बाइंड का तो बना सकते हैं कि तुम अपना होमवर्क अभी करोगे या बाद में। वो तो मैंने बताया था, आप खुद बनाओ अभी दूसरा, वो तो मैंने बताया था। तो हाँ सर, सर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सपोज अगर किसी कोई पेयर है उसमें कोई इश्यूज चल रहे हैं एंड आफ्टर दोनों काउंसलिंग। कंबाइन करके बताओ, करंट पेसिंग एंड डबल बाइंड एक साथ। ओके सर, मैं एक ही। हाँ, अभी बना दो। You will be doing current pacing and double bind. Sunita will be doing question tag and double bind. Amir is there. Yes, sir. Double Yes, sir. bind and question tag. Sunita will be doing question tag and double bind. You will be doing double bind and question tag. RM, that is, you will be doing double bind. And Achal will be doing combination of question tag, current pacing and double bind. Rukaya will be doing conversational postulate and double bind. So who is going to start first? सर 2 मिनट दे दो सर, सोचना है पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर You हुआ must है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो। you must go to sleep, don't you want to? डबल बाइंड एंड क्वेश्चन टैग आपको बोला है ना? Okay. डबल बाइंड। Sir, can I try? Yes, please. Can you please submit the assignment? Will you do it today or later? Will you do it today or tomorrow? Can you please submit the assignment? Will you do it today or tomorrow? Or will you give it now or in the evening? हाँ, ये बोल सकते हो कि can you please submit the assignment today or tomorrow? Simple. उसको आगे कुछ बोलना ही नहीं। Can you please submit the assignment today or tomorrow? Okay. हाँ sir. क्योंकि वो आपको HR में भी काम आएगा। सर, हाँ जी। question tag and double bind. हाँ, It combine. is cold, isn't it? Now or later, you will have to take the blanket. हाँ, it will work. Yes. So pacing current experience and double bind. हाँ, as you continue your breathing in and out for meditation, are you doing meditation current means it present or after sometimes? I would नहीं, ये थोड़ा गलत हुआ। I would put it this way, अगर करना है, as you are doing meditation, sooner or later you will start feeling relaxed. Okay. As you are doing meditation, sooner or later you will start feeling relaxed. उसमें पहली कमांड भी आ गई, दूसरी कमांड भी आ गई। दूसरी कमांड भी आ गई। हाँ। Right, sir. आंचल। Okay, sir. हाँ, आमिर बताइए। Yes. Mr. Ambani is going to launch 5G very soon, isn't he? हाँ, बट इसमें डबल बाइंड कहाँ आ गया? इसको ऐसा बोल सकते हो आप, इसको ऐसा बोल सकते हो, sooner or later Reliance is launching 5G, isn't it? Okay. ये हो गया एक झटके में। Sooner or later Reliance is launching 5G, isn't it? Okay. सब कुछ आ गया उसमें। Try to minimize the sentence so that Okay, its sir. effect doesn't vanish.
क्योंकि क्या होता है जब Okay. आपको किसी से बात करनी है एंड इफ योर सेंटेंसेस आर लेंदी, then the person becomes conscious about what you are saying and you have to bypass his conscious mind. तो आपको जितने छोटे वर्ड्स में कमांड्स दे सको उतने ज्यादा छोटे कमांड्स दे दो। आंसर आपका हो गया? सर मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे बनाना है। कोई बात नहीं, who would make it for her? So could you once again please explain me double bind? Actually, I'm getting confused. डबल बाइंड क्या होता है कि डबल बाइंड इज लाइक, इट इज अ इनडायरेक्ट कमांड दैट नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू इट, Okay. Okay. सूनर और लेटर, टुडे और टुमारो, इस तरह से। आज या सर कल वहाँ को पे एक करेगा। सर वहाँ पे एक Modals, राइट we आर्म use लेफ्ट modals. आर्म का बात है ना, राइट आर्म लेफ्ट आर्म का उसका क्या मतलब यहाँ पे कैसे हो, राइट मतलब राइट ऐसे- आर्म लेफ्ट आर्म, हाँ वहाँ पे एक ऐसा है ना, मतलब पिक्चर वो डबल बाइंड में राइट आर्म विल रेज और लेफ्ट आर्म विल रेज, तो इसका क्या एप्लीकेशन है, मतलब कैसे क्या करें? वो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म के। एज यू आर लिसनिंग माय वॉइस, सूनर और लेटर you will probably lift your right arm or left arm. तो current pacing experience भी लिया, double bind भी लिया, because when you are giving a hypnotic command to someone, hypnosis में जब use करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी एक हाथ उठाना important होता है। तो वो command में वो specifically I have just given you the examples, those are not the commands. You have to make your commands. I have just given few examples कि हाँ इस तरह से आप कर सकते हो। सर मैंने कोशिश करी है, हाँ क्या जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हम लोग सब सीख ही रहे हैं, हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, आपने मेरे को क्वेश्चन टैग दिया था, करंट बेसिक दिया था और डबल बाइंड दिया डबल था। बाइंड, बिल्कुल। क्या आपने खाना खाया? आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, चाहे अभी चाहे बाद में। हाँ, अब यहाँ पे जो है ना, क्या आपने खाना खाया was a right question tag। आपको खाना खाना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस वहां इस तरह से डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दैट इज लाइक कटिंग द थिंग्स। क्या आपने खाना खाया, आप ये क्लास सुनते हुए भी खा सकते हो, सुनते हुए या खत्म होते होते खाना खा सकते हो। ये करंट में आएगा। करंट पेसिंग एंड सुनते हुए एंड खत्म होते हुए, डबल बाइंड भी आ गया उसमें। जी तो इस तरह से जब आप फ्रेम करोगे तो सामने वाला कंपल्सिव मोड में आ जाता है दैट ही और शी हैज टू डू इट। अभी और एक सेंटेंस है, सर उसमें दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू, यू आर इनटू एचआर, ओके। Suppose XYZ person is a good person and he's good at work, but he comes late for the meeting. How would you tell him? I will use question tag, sir. Now forget about everything, whatever you have learned. आप उसको जनरली कैसे बोलोगे कि वो लेट आ रहा है मीटिंग में, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो आप कैसे बोलोगे? मैं बोलूँगी कि इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए। हाँ, I'll tell him that your work is fabulous. It will be really more if एक मिनट से, your work is very good. It will be fabulous if you start coming to attending meeting on time. Your work is very good. It will be more fabulous. It will be fabulous if you start attending meeting on time. Isn't it? हाँ, but अभी यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे but यूज करते, हाँ, so can anyone explain? For example, I'll put it this way: you are doing an awesome job, but you are coming office late daily. Focus कहाँ जाएगा? you're coming to Coming office. late. हाँ, coming late. The situation after but, sir. Yes. And फिर वो इंसान चाहे जितना भी काम करे उसके पूरा मूड ऑफ हो जाता है। बट अगर आप ऐसा कहते हो, you are doing an excellent job even though you are late daily, तो उसको ये भी पता चल जाता है
कि भाई उसकी गलती है, बट उसका जो फोकस है वो पूरा बट के पहले वाले काम पर। सेंटेंस पे आता है. हाँ, काम फॉर एग्जाम्पल, हम्म, टुडे इट इज रेनिंग but tomorrow it will be, so for example today it is sunny but tomorrow it will be raining. तो आपका पूरा फोकस कल पे चला गया। tomorrow पे जाएगा. हाँ, हम्म, today it is sunny even though tomorrow it will rain. तो तुम्हारा अच्छा, हाँ. फोकस आज पे गया. आज पे। So henceforth make sure that in your written emails try to use the word even though wherever possible instead of but. The entire framework changes. आपका कम्युनिकेशन पूरा चेंज हो जाता है if you are using but and even though. इस पूरे सिर्फ but and even though दो वर्ड्स पे पूरी बुक लिखी गई है, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, हाउ टू फ्रेम द थिंग्स. What is called what is the name of the book, sir? स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक Of magic. Okay. है, 1000-1500 पेज की बुक है, बट पूरी बुक इसी पर लिखी हुई है, बट एंड इवन दो, हाउ टू शिफ्ट द फ्रेम्स. That person died last year, Robert Ditz. So this was Milton model. Now when it comes to meta model is all about asking the questions in the right way. Meta model is all about asking the questions in the right way. That when someone says, you don't love me, how exactly should I behave? Or what exactly will prove that I love you? How exactly should I behave so you feel I love you? When someone says, we will go, when exactly? How exactly? इस तरह से आप उस क्वेश्चन को तोड़ सकते हो. फिर when someone says, we will do it, exactly who? क्योंकि वी विल में बहुत हो जाता है. वी विल में वो इंसान ये बोल सकता है कि वी विल डू इट बट ही इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. बोलते हैं ना चलो हम लोग करते हैं, अब हम लोग में सबसे पहले वो हम लोग जो बोलने वाला इंसान होता है ना, वो सबसे पहले बाहर हो जाता है. दिस हैपेंस इन अ, तो एग्जैक्टली कौन कौन मिलके करेगा, And how exactly will we do it? हाउ एग्जैक्टली who will be involved, how exactly will be doing, so that you get the right answers. वरना वो इमीडिएट बाहर निकलता है. ASAP का लॉन्ग फॉर्म क्या आता है? As soon as possible. As slow as possible. Sorry. So it depends how you see How it. soon as possible we said together. But as slow as possible. Simple है ना. वो तो बोलेगा I had given you in writing, I'll do it ASAP. You never know उसका ASAP क्या है. So always try to be clear when you are making your sentences, when you are making the words. जितना clearly लिख सकोगे उतना हमेशा clear करो. Meta model is all about asking the right questions: how, when, what, how exactly, when exactly, who exactly. Indirectly open-ended questions. Open-ended questions. तो जहाँ पे आपको आंसर मिलना आसान हो जाता है. सर मतलब ये जो आपने एक मतलब बहुत सारा टेबल जो दिया सेंटेंसेस का, तो उसका मतलब सर वो मतलब कोई बोलेगा तो हम पर्टिकुलर वो जैसे अनस्पेसिफाइड नाउन स्पेसिफाइड वर्ब ऐसे करके. मुझे वो टेबल याद है. उसमें फॉर एग्जांपल क्या लिखा है कि फर्स्ट इसमें मैंने सेंटेंस दिया है, ठीक है. सेकंड इसमें उसको तोड़ना कैसे है वो दिया है. एंड थर्ड कॉलम इफ यू सी it is written response, that what response exactly you will get with that particular sentence. अगर आपने नोट्स ठीक से पढ़े हैं तो first is the exact sentence whatever I want to say. Second is क्या पूछना है, किस तरह से तोड़ना है. हाँ. And third column जो है that will give you the exact outcome of your sentence which you have asked, जो आपने तोड़ा है. First column में, for example, if you are blaming someone, I'll put it this way to make it easy. First column, you are blaming someone. Second column, you are trying to question him that how exactly, what exactly. And in third column, you get the exact response of the question which you have asked.
how exactly, when exactly, तो वो आपको थर्ड कॉलम में मिलेगा. So whenever you are using it in your daily life, make sure that you are having enough words in your vocabulary so that you can ask the right set of questions. बट आपकी मेरी सबकी जिंदगी मैक्सिमम 25-30 वर्ड्स के अराउंड ही पूरी घूमती है. अगर आज आप बैठते हो रात को लिखने के लिए कि आपको कितने वर्ड्स याद है, मैक्सिमम 25 से 30 वर्ड्स लोगों को याद होते हैं, चाहे किसी भी भाषा में हो. एंड अपनी मातृभाषा में तो हार्डली 5-7 वर्ड्स याद होते हैं, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको हिंदी और मराठी के वर्ड्स इंक्लूडिंग मी, आई हैव सीन, जब मराठी लिखने को बैठता हूँ तो बहुत बार याद नहीं आता है कि कौन से वर्ड्स कहाँ, बीच में इंग्लिश आ जाती है, बिकॉज दैट हैज बीन लाइक अ हैबिट. तो ट्राई टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी so that you are able to convince the other person in the easy way. जैसा देश वैसा भेष, वोकैबुलरी बिल्डअप होनी ही चाहिए, because you never know when you can connect with which client. या घर के लिए, खुद के लिए, किसी के लिए भी. एंड इवन आपकी खुद की वोकैबुलरी अगर बढ़ गई तो आप खुद से भी ठीक तरह से बात कर पाओगे, because your self talk is also important, that what commands you are giving to yourself. Your self talk will define how exactly you can live your life. आज हम लोग 2 important exercises करेंगे which are specifically meant for health issues. सर आप सेल्फ टॉक के बारे में कुछ बोलिए ना सर, कैसे करते हैं, मतलब किसके बारे में? सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक. यस सर, उससे कैसे रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सेल्फ टॉक अगर करना है तो सेल्फ टॉक इज नथिंग अबाउट बट what affirmation you are giving to yourself. I am in process of healing myself. I am in process of getting better and better. अब इसको अगर आप सपोज आपको जो भी कोई अफर्मेशन करना है, आप उसको खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हो 2-3 मिनट के लिए. Then put it in the loop. सॉफ्टवेयर के बहुत सारे इस पर नेट पर मिल जाते हैं, उस पर लूप में चला दो 15-20 मिनट के लिए, और फिर हेडफोन लगा के सुनो खुद की आवाज में. दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन योर ओन अफर्मेशंस. खुद की आवाज में अफर्मेशंस रिकॉर्ड करो 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, एंड देन पुट इट इनटू मल्टीपल लूप्स. सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको, लूपिंग सॉफ्टवेयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, सपोज 3 मिनट का एक किया तो 3 × 6 is 18 minutes, 3 × 7 is 21 minutes. 21 मिनट्स का आपका खुद का अफर्मेशन का सॉफ्टवेयर ये लूप बन जाएगा. While sleeping, you can just plug in your earphone and start doing it. You will see the results immediately. Sir, I want one more thing, sir. आपका जो affirmations रहता है ना, वो and कितने and लगा सकते हैं, कैसे, मतलब how it can it be big, can it be small? Affirmations, let them be small. The more you make them big, you are not able to bypass your conscious mind then. Because अगर आप, for example, if I say I am in process of being healthy, and also I am in process of looking beautiful, as I want to wear some good clothes, so this will not work. I am in process of losing weight, बस इतना ही simple. क्योंकि आपको I am in process of managing my weight loss in a healthy way. That is better. I am in process of losing my weight in a healthy way. That will work. But अगर आप सिर्फ इतना ही बोलोगे कि I am in process of losing the weight, probably you will catch up with some infection or some health issue, and you might lose the weight like anything. तो आपने तो कमांड ये दे दिया कि आपको वेट लॉस करना है, कैसे करना है वो बताया नहीं. So try to use maximum 6 words in your affirmation. Make them as small as possible so that it becomes easy. हमको हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ने एक बात बताई थी, सिंपल फॉर्मूला टू मेक द थिंग्स इजी. एक मिनट में आप बैठिए. That formula was Can anyone decode it? Sir, I know, sir. Keep it simple and short, short and simple. उसको और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए keep it simple, stupid.
simple, stupid. It becomes more effective. Okay. क्योंकि जब आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करते हो तो वो ना खुद के दिमाग में जाता है ना सामने वाले के दिमाग में जाता है. Okay. So today we try to learn one proven exercise which works in maximum health issues, चाहे वो ऑटो इम्यून हो चाहे और कोई हो, but it works 200%. Without any doubt it works. इसको आपको करना क्या होता है, बेसिकली व्हाट हैपेंस इन ऑटो इम्यून डिजीज, आई टेक इट फॉर ऑटो इम्यून डिजीज इटसेल्फ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं. ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, आपके जो अच्छे सेल्स हैं, आपके अच्छे सेल्स ही एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं. They try to kill your healthy cells are killing each other because they assume that something is wrong in your body. अगर इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज में होता कुछ नहीं है, your healthy cells itself start killing each other. एकदम सिंपल भाषा में. तो इस एक्सरसाइज को करने के पीछे लॉजिक ये है that आपको ऐसा विजुअलाइज करना है या अज्यूम करना है कि आपके जो हेल्दी सेल्स हैं वो आपके बड़े भाई है और छोटे जो अनहेल्दी सेल्स है, जो भी डिजीज सेल्स हैं, ये छोटा भाई है. लेफ्ट हैंड में आपको आपका छोटा भाई पकड़ना है एंड राइट हैंड में बड़ा भाई. पहले लॉजिक समझ लो. अब इसको अगर आप 15 से 20 मिनट रोज करते हो तो आई गारंटी यू दैट यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन ऑटो इम्यून सिंड्रोम, चाहे कोई भी हो. बट इट डजंट मीन दैट यू शुड डिसकंटिन्यू योर मेडिसिन चालू रखो, बट ये मेरे लिए 100% काम करती है. डेली कम से कम 15 to 20 मिनट्स यू हैव टू डू इट. इट वर्क्स. लेफ्ट हैंड में आपका छोटा भाई जो भी डिजीज सेल्स है वो, राइट हैंड में हेल्दी सेल्स. अब आपको क्या करना होता है, आंखें बंद करके राइट हैंड के जो सेल्स हैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना है. उनको यू हैव टू टॉक टू देम दैट यू आर द एल्डर ब्रदर इन द फैमिली. और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, सो प्लीज नोट इट डाउन. ना ये नोट्स में है कहीं पर, तो ट्राई टू नोट इट डाउन. वैसे भी ये वीडियो रिकॉर्ड बार बार देख के भी आपको समझ में आ जाएगा. राइट हैंड में जो सेल्स हैं उनसे आपको बात करनी है कि भाई तुम बड़े भाई हो, व्हाई आर यू ट्राइंग टू हर्ट योर यंगर ब्रदर, ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम. जिस तरह से हम लोग बड़े भाई को, जैसा बड़े भाई को समझाते हैं ना बड़े बेटे को कि भाई तू छोटे भाई का ख्याल रख. ट्राई टू यूज योर ओन फनी लैंग्वेज एज फार एज पॉसिबल, कि तुझे अपने भाइयों का ख्याल रखना है, तुझे बिल्कुल ठीक से उनका ख्याल रखना है. तू उनको क्यों मार रहा है, उनको बिल्कुल शांति से रहने दे. फिर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ध्यान देना है. लेफ्ट हैंड में जो सेल्स हैं उनको भी यही समझाना है कि जब तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कोई समझाने के लिए आता है तो उसको उससे लड़ने की बजाय ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग टू यू. उससे समझ लो एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम्हें उसको तुमसे ज्यादा पता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब द थिंग्स. इसके बाद फिर उसको बोलना है कि अब जब तेरा बड़ा भाई तुझे मिलने को आ जाएगा तो बिना किसी एप्रीहेंशन से उससे गले लग जाओ और दोनों एक हो जाओ और अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस बड़े सर 2 मिनट. सर 2 मिनट लिख लो. यस. सर आप कैसे करेंगे, मतलब आप बात करेंगे, यू लुक एट द हैंड्स एंड यू विल टॉक टू ईच हैंड्स, इज इट? 80 सेकंड ना, सिर्फ 1 सेकंड. हाँ सर, सॉरी.
एक ही मिनट देना मुझे। Yes, someone had a question. Sir, how do you actually do? You will close your eyes and you look at your right hand, or how do you do that, sir? You close your eyes, you look at your right hand and explain the big brother in the right hand that you have to take care of your younger brother. Don't harm him. Explain him just the way you must be telling your elder daughter how you should Okay. behave at home with the younger sister. तो इस तरह से एंड लेफ्ट हैंड में जो है छोटा भाई या छोटी बहन जिसको भी आप विजुअलाइज करोगे उसको बोलना है कि नाउ व्हेन योर बिग एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर कम्स ट्राई टू जेल अप विद देम, ट्राई डोंट फाइट विद देम। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको आंखें बंद करके राइट हैंड में जो सेल्स हैं उनको विजुअलाइज करना है कि वो राइट हैंड से निकल के धीरे 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 यहाँ तक आ रहे हैं, आपके थाइमस तक, हार्ट तक आ रहे हैं। सर एक बार और बोलिएगा। राइट हैंड से आंख बंद करके फिर विजुअलाइज करना है कि राइट हैंड के जितने भी आपके हेल्दी सेल्स हैं वो सारे हेल्दी सेल्स यहाँ से निकल के यहाँ थाइमस तक आ रहे हैं। फिर लेफ्ट हैंड से भी जितने भी अनहेल्दी सेल्स हैं बॉडी के वो सारे यहाँ से निकल के थाइमस के इस पॉइंट तक आ रहे हैं। ये सेकंड स्टेप में हो गया। अब थर्ड स्टेज में क्या करना है? सर एक मिनट, सर एक मिनट। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं पार्ट्स इंटीग्रेशन। इसकी थियोरी आपको इंटरनेट पे भर भर के मिलेगी, which is practically, honestly, it might not help unless and until you use it in the practical way, that how to use it. क्योंकि पार्ट्स इंटीग्रेशन की थियोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है and we are trying to make the thing simple so that you can use it in the daily life. And इसके रिजल्ट्स 200% मिलते हैं। तो थर्ड स्टेप आपने दोनों यहाँ लेके आ गए। अब क्या करना है, विजुअलाइज एज इफ ये दोनों भाई यहाँ पे गले मिल रहे हैं थाइमस में, एंड जैसे ही थाइमस में गले मिल रहे हैं वहां पे जितने भी आपके सड़े पुराने जो भी कोई मेमोरीज होंगे, सड़े हुए मेमोरीज कहिए, ट्रॉमेटिक मेमोरीज कहिए, कुछ भी, वो सारे वहां पे खत्म हो रहे हैं। It can be any painful memory, it can be any traumatic memory, it can be anything which is now getting completely disintegrated into pieces, and दोनों भी सेल्स मर्ज हो रहे हैं। आपके जो डिजीज सेल्स हैं बॉडी के वो सब खत्म हो रहे हैं और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये सारे सेल्स अब जा रहे हैं जहाँ पे आपके डिजीज। सर 2 मिनट, सर 2 Yes. मिनट। जो भी प्रॉब्लम है, सर एक मिनट, सर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिग्रेट है, जो भी ट्रॉमा है, वो सब निकल चुका है। वो सब निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है सर, वो निकल रहा है, लाइक ना, निकल रहा है। जैसे जैसे वो मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो रहा है। हाँ, वो सब मिक्स मतलब वो वहाँ हेल्दी सेल्स की वजह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। हेल्दी सेल्स अनहेल्दी सेल्स को मर्ज करके हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करना। हाँ, बिल्कुल, यस। एंड दिस अनहेल्दी सेल्स कैन बी योर पास्ट पेनफुल मेमोरी, ट्रॉमा, हेल्थ इशू, टॉक्सिन्स, एनीथिंग। सर इट्स जस्ट लाइक द रेकी। रेकी, यस, रेकी भी बोल सकते हो। और फिर इसके बाद ये सारे सेल्स जो है वो आपके लेफ्ट हैंड पे लेके जाने हैं। अब सारे हेल्दी सेल्स, हाँ, सारे हेल्दी सेल्स अब लेफ्ट हैंड में लेके जाने हैं।
अब अब ये- सारे कन्वर्ट हो चुके हाँ हेल्दी कन्वर्ट है, सेल्स हाँ सारे कन्वर्ट हो चुके हेल्दी सेल्स अब आपको लेफ्ट हैंड पे लेके जाने हैं। और फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट हैंड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के see and feel that energy getting completely absorbed in your body, and this has to be done जब ये दोनों हेल्दी सेल आप सब यहाँ सेल्स लेके आ गए, उसके बाद आपका ये चैनल कंप्लीट हुआ राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। सर एक उसके मिनट बाद हाँ सर, ये जो हेल्दी सेल्स हैं ये सारे कन्वर्टेड हेल्दी सेल्स कन्वर्टेड आप हेल्दी सेल्स हमारे लेफ्ट हैंड में आ रहे हैं, यस लेफ्ट हैंड में आ राइट? गए, नॉट इन राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड में आ रहे लेफ्ट हैंड में आ गए। अब इसके बाद आपको आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड पे इस तरह से रखना है and start feeling that energy being absorbed by each and every part of your body from top to toe, internally, externally, sub, and this you have to feel for minimum 15 minutes. ये प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप होने के बाद ये हाथ जब मिक्स करोगे तो जो हीट एनर्जी बॉडी में फील होगी ये कम से कम 15 मिनट करनी है डेली, and you will see the results immediately. हम लोग अभी पहला सेशन लाइव करेंगे so that you are sure about it that how you are doing it. We'll do it right now. क्योंकि बाद में कुछ होता नहीं है, जो होता है वो अभी होता है। Created a business. Now, create videos for your business. These Should I call my daughter? Yes, why not? Yeah. Yes, yes. Just go check and come, sir. Just give me a minute. We'll do it for 15 minutes now. Do it at your own pace, Abhi, but we'll finish the entire exercise in 15 minutes. So शुरू के 2-3 मिनट में आप वो सब प्रोसेस कर देना। राइट हैंड में बड़ा भाई, लेफ्ट हैंड में छोटा भाई, फिर इसको समझाना है, इसको समझाना है, फिर दोनों को यहाँ लेके आना है, दोनों का भरत मिलाप कराना है, फिर हाथ यहाँ पे लेना है और फिर जो प्रोसेस फील करोगे एनर्जी वो पूरी फील करनी है एंड यू विल सी दैट योर हेल्थ इश्यूज आर गेटिंग नॉर्मल। आप यहाँ पे आशा मैडम अभी आप आपके पीठ के दर्द को भी ठीक कर सकते हो, दैट यस इट इज हेल्पिंग यू टू क्लियर द थिंग्स। जो भी वहाँ स्लिप डिस्क वगैरह जो हुआ है दैट इज कम्प्लीटली उसके बीच में जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज पूरा ठीक हो रहा है, आपकी डिस्क पूरी अपनी जगह पे बैठ रही है। विजुअलाइज इट एंड इट विल हैपन। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर जो डिस्पेंसा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम 36 के 36 ठीक हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। इट इज ओनली इन योर माइंड, बाकी कुछ नहीं। किडनी स्टोन के लिए भी काम कर सकता है। किडनी स्टोन 100% जाता है मैडम, बट आई एम सेइंग दैट please continue with your medicines also, but this exercise will help you to remove your kidney stones for sure. जाता है, मैंने क्लाइंट का किया है। बिल्कुल जाएगा, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेडिसिन छोड़ दो, मेडिसिन मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करो, जाता है। बिल्कुल जाएगा। ये ऑपरेशन टाल देता है, अगर आप करोगे ना ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ऑपरेशन टल जाता है। ऑपरेशन टलता है। I had also reduced creatine level from 16.9 to 6.5 in one day किडनी पेशेंट का, तो होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। just that a person should have a belief and we should have a belief that whatever we are doing is happening. So now we'll start the मुझे exercise. ना रिकरेंट है तकरीबन 20 साल से आता इसको है, ये चलता है। आपको हाँ जी, मुझे हाँ जब आता है तो मुझे पता चलता है कि मेरा स्कोर बढ़ गया है एंड देन इट गोज ऑल्सो। आई हैव मतलब इसको हमने थ्रू आवर रिपोर्ट्स आल्सो हमने चेक किया है, तो दैट इज अ रिकरेंट प्रॉब्लम दैट हैपेंस। so remove that regret. ऐसा क्यों पकड़ के रखा है इतने गले लगा के? मैंने सिर्फ कलर ही लगाया आज। जस्ट डू होपोनोपोनो। हाँ अब वो यस वो बहुत अच्छा है, it works amazing। 11-15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है।
Okay, so she is your daughter. Yes, yes. Hello. Hello. What's your name? Rida. Vida. R-I-D-A. Nice name. RIDHA. R-I-D-H-A. Nice name. Good. So we are starting with the exercise. Maybe your mother can brief you, because I'll not be saying anything now. आप खुद कर दो. रुकिए जी, आप उसको एक बार बता दोगे क्या, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का प्रिंसिपल? सर आप गाइडेड करवाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो कंसंट्रेशन होगा फर्स्ट टाइम में. चलो ठीक है, गाइडेड करवा देता हूँ. मुझे पानी पी लेने दो. चलो, I'll do it guided. Don't worry. I'll do it guided. Close your eyes. Close your eyes. या सर. Close your eyes. Just keep out your pen and सब कुछ बाजू में रख लो. Now, as you are sitting comfortably at your place, relax completely while I'm counting from 10 to 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now, see that you are keeping your both the hands in front of you, palms facing toward the sky. Let your hands be at a comfortable position. Let your hands be completely comfortable. Now, in your right hand, you have all the healthy cells of your body, which you can treat them as your elder child. In your left hand, the left palm, you have the diseased cell, or the painful cells, or any pain in your left hand. Now, try to speak with the cells in your right hand and explain them that they are the elder child of the family. They have to take care of the younger ones. Explain them what is good, what is bad. Explain them what is right, what is wrong, without hurting them, so that the elder child also, so that the younger child also grows in a healthy way. Now, move towards your left hand and speak to the diseased cell, the elder child, the younger child of the family, and explain him or her that as the elder brother or sister is coming to help you to live a healthy life, please allow him to help you. Please accept that help wholeheartedly
so that you are living a healthy life. Now, as you have explained both the children, see and feel that your healthy cells in the right hand are moving towards your thymus point, which is located exactly at the start, at the viewpoint of the breastbone. Also, bring the unhealthy cells from the left towards the thymus. Now, both the cells are exactly in front of each other and looking towards each other as if they don't know each other. They are just trying to find out a reason to fight with each other. You being a parent, now explain both of them that yes, they both are your children, having the same blood, and they both have been taken birth from the same body. Guide them slowly to shake hands with each other and hug them each other tightly so that all the diseased cells completely get disintegrated, whether it's a past painful memory or trauma or any health issue which you are suffering from. See how all the diseased cells are disintegrated, and now only healthy cells are remaining in your body. All the diseased cells are converted into the healthy cells. All the toxins are completely converted into the positive vibrations. All the traumatic memories are completely dissolved and disintegrated completely into the positive cells and getting converted into more happy cells, healthy cells. Now, see and feel that all the cells in your left hand are now completely healthy cells. Your complete channel is established from right hand to left hand. And now, touch, keep your left palm, keep your right palm on your left palm. Keep it physically and feel that energy flowing from your left palm to right palm and right palm to left palm. And now, for next 5 minutes, feel this energy getting absorbed in your body, preparing each and every cell of your body in any part, internal or external, and feel those vibrations for next 5 minutes. See how healthy you are feeling. Feel that vibrations completely. Your body is absorbing each and every positive thought, is absorbing all the positive cells and getting converted completely into the positive, healthy mindset and healthy body. See each and every diseased cell is now completely converted into the healthy cells, and no matter which health issue you have, it is completely disintegrated from the entire body, and whichever disease or the health issue you have, see that it is getting completely resolved,
and that particular body part, that body function has started working in the right way. Enjoy this for next 5 minutes till the music is going on, and feel that positive effect in your body. Feel that energy. See how supercharged you are feeling by end of this session while you are listening this music. Enjoy this session for next 5-7 minutes. Feel that energy.
See that positive vibrations inside your body. See how each and every cell has got converted completely into a healthy cell. Your entire skin disease, your entire autoimmune disorders, your fear, your anxiety, anything which you have, your constipation related issues, your health issues, your bowel issues, your blood impurities, your eyesight issues, any health issue which you have is getting completely converted into a positive state of mind, and it is getting completely cured with these healthy cells. Your leaky gut, your gut syndrome, any ill effects in the gut are completely cleared, and you are living a healthy life. Be thankful to all the cells in your body which are now healthy. Give them a heartful thanks for making your body perfectly fit and fine and healthy, free from all the health issues, and making you feel completely relaxed. Feel that happiness. See how your body is completely relaxed. Each and every cell is now regenerated. You are feeling completely relaxed. The body is relaxed. Each and every part of your skin is completely relaxed, healthy, glowing skin. Your face is glowing. Your complete skin is glowing. Feel that vibrations inside your body as you are listening this music and while you are experiencing this energy in your body. Now, slowly, as I count down from 10 to 1, you will see your body is completely relaxed and into a complete peace, healthy, and a very nice environment to make you feel completely comfortable. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Your body is completely relaxed, your mind is completely relaxed. Now slowly, on the count of 5, you will open your eyes. As I count from 5 to 1, on 3, you will rub your palms, on 2, you will keep your palms on your eyes, and at 1, you will slowly open your eyes and you will be into complete relaxed state. 5, 4, 3, 2, and 1. Very slowly open your eyes. 5, 4, 3, 2, and 1. Very slowly open your eyes and feel that change in your body. So, Vida, what could you feel? Amazing, sir. इससे एकदम फील एकदम लाइट फील हो रहा है बॉडी में, जैसे जैसे जंक वंक था वो पूरा ओपन हो गया है, फ्रेशनेस आ गई है. Great. Vida, how about you, the youngest member of the group right now? I'm having a headache in my eyeballs. The Do it place where again. Do it again. Probably you were not in the state of acceptance कि ऐसा कैसे हो सकता है. Probably you are not in the state of acceptance that how this can happen. So do it again. I'll be sharing the video today night. The logic is very simple, that you have to live a healthy life no matter what, so that you are able to live a peaceful and a healthy life, a complete disease-free life. It is very important to live a disease-free life, or else we see people who are having Right. good amount of money, but they are nothing but a baggage of disease. So ऐसा नहीं होना चाहिए. Live a healthy life, live a disease-free life. Everyone, ये exercise सबके लिए काम आएगी. सुनीता जी, how was your experience? आंचल, आपने किया, आपका experience कैसा था?
सर सर मुझे भी बहुत लाइट फील हो रहा था, काफी अच्छा लगा मेरे को। पहले नेहान्या भी ऐसे करवा चुकी हैं, तो उस समय भी बहुत अच्छा फील हुआ था। इसको प्रैक्टिस करो रोज, जी सर। it will help you 100%. जी So this is considered as this is like parts integration exercise which works 200% with 300% results. जी सर। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, it will work. जी पर Sir, I आपका feel like यकीन इम्पोर्टेंट है। हाँ जी आमिर, I feel like that I'll sleep tonight peacefully, you know, very nice. अच्छी नींद मिलना भी because बहुत the important stress I keep continuously. I mean, I work for 12 to 14 hours in a day. है। And you take trainings, right? Yes, yes. English language. Great. तो इसको practice करो, you will see that things are getting much better in the easy way. सर मेरे लिए स्टार्टिंग में काफी हेवीनेस था, जब वो जो मर्ज वाला जो था कि वी हैव टू थिंक अबाउट दिस इंटीग्रेटिंग द अनहेल्दी एंड द मर्जिंग एंड यू नो, हाँ। वो ये थाइमस पे मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रहा था। आई वाज लाइक ये क्या है, बट आफ्टर दैट रिलीजिंग एंड ऑल दैट नाउ लाइक यू नो आई एम एट यस दिस इज व्हाट इट इज। तो मुझे अभी काफी अच्छा फील। It will work 200%. Even आप सृष्टि से भी करवा सकते हो। हाँ सर, This specifically works in autoimmune disease. 100% काम करता है। किसी भी फिजिकल पेन में भी काम करेगा, जहाँ कहीं भी है वहाँ सब जगह काम करेगा एंड 200% रिजल्ट देगा। This was the first exercise which I wanted to teach today. Second is anxiety दुनिया भर के लोगों को होती है। How many of you feel anxiety? I, sir. Okay. कहाँ आती है? चेस्ट में, पेट में? Chest. दुनिया में कितने भी लोग हैं, जितने भी, एंजाइटी कोई नहीं कह सकता है कि मुझे सिर में एंजाइटी होती है या हाथ में होती है। एंजाइटी हैपन्स ओनली इन द चेस्ट और इन द स्टमक। एंड एंजाइटी सिर्फ ऐसे 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 या ऐसे फॉर्म में होती है। Those who are having anxiety can close your eyes and see where exactly is that anxiety right now. Even विदा, आपको भी अगर एंजाइटी रिलेटेड इशू है कि लोग आपको देखते हैं तो आपको ऐसा होता है वैसा होता है, that feeling which you have, where does it come? It comes in your chest, it comes in your stomach. Where does it come Sir, first? chest. Chest. आपको चेस्ट में आता है, आपको स्टमक में आता है। आमिर, मैं इसको करवाता हूँ, ये उसकी मम्मी ने ऑलरेडी बोला था, बट आप सब लोग देख लो। I'll take her on the screen. Done, sir. Done, sir. I'll take her on the screen. आपको स्टमक में एंजाइटी होती है, राइट? Yes. आंख बंद करके मुझे ये बताओ कि वो एंजाइटी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है या ऐसी है? जो चक्कर घूम रहा है ना एंजाइटी का, वो कैसे घूम रहा है ये बताओ। आंख बंद करके, आंख बंद करके ही आपको पता चलेगा, आपके मम्मी को पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा। आंख बंद करके आप महसूस करो। डू इट राइट नाउ। क्लोज योर आईज एंड सी दैट फीलिंग ऑफ एंजाइटी, in which direction it is rotating, and is it clockwise, anti-clockwise, horizontal or vertical? One second. It's like this. Okay, horizontal, clockwise. Clockwise, yes. Horizontal, clockwise. Clock- Now what you have to do is observe me closely. Now visualize as if you have put a handle on that wheel. Okay, and if it is moving clockwise, you have to move it anti-clockwise now. ठीक है? If it was anti-clockwise, you will have to move it clockwise. अभी आपका जो clockwise है, तो आपको anti-clockwise घुमाना है इस तरह से, see this way, पेट की तरफ ले जाके। Is the point you feel that now it can't be reversed? घुमा के देखो, ठीक है? And just hit your stomach lightly. Lightly hit your stomach immediately. The moment you feel that now it can't be reversed, hit your stomach lightly. Do it.
अभी कर दो, थोड़ा सा फास्ट घुमाना so that it doesn't reverse back. I feel. किया? गया कहीं पर? What are you feeling now? Feel like some kind of knot is released. Some kind of knot is released. Amazing. तो इस एक्सरसाइज को आप अगर रोज करते हो, मैं अभी यहाँ पे आपको लाइव पे दिखा देता हूँ. So that everyone can watch. Any pain or anxiety in the body can be removed with this exercise, and it takes hardly a matter of few minutes. Anxiety is a feeling in the body which you can locate in your stomach or chest or any body part. So suppose if I am having anxiety in my stomach, I have to just close my eyes, see where exactly it is located in the stomach, see the rotation of that particular anxiety inside the stomach. Now once I am sure that I am able to locate the anxiety, I am holding it outside, and now suppose if it is moving in the clockwise direction inside the stomach, I am completely rotating it in anti-clockwise. And the moment I realize that now it can't be reversed, I will just hit that feeling again back in my stomach, and my anxiety will be off. It works for pain, it works for any uneasiness which you feel, and this technique is 100% useful. So try this, it creates a miracle. ये वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. 100% रिजल्ट मिलेगा. ये मैंने लाइव वर्कशॉप में डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं सारे, एंड सिखाया है लोगों को. एंजाइटी डजंट एग्जिस्ट. आप अगर एंजाइटी के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट, बट डॉक्टर विल गिव यू ओनली मेडिसिन्स जो आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने आप दोगे, वापस एंजाइटी आ जाएगी. बिकॉज एंजाइटी के जो मेडिसिन्स आते हैं, चाहे वो सर्टा हो, सर्जेप्ट हो, नेक्सिटो हो, फॉरगेट अबाउट द नेम्स व्हिच आई हैव टेकन, बट these medicines are only for your sleeping. They don't reduce your anxiety. They work on the symptoms instead of working on the root cause. तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली उस फीलिंग को ही रिवर्स करते हो, एंजाइटी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड which can be reversed at any given moment of the life. And before that anxiety gets converted into a clinical disorder, it's better to work on it right now. Because once it gets into a clinical disorder, then you are a guinea pig for lifetime for medicines. So But yes, it can be reversed. Even if you are having an age-old anxiety, still it can be reversed if you want to get it reversed. So Yes. I have a client. उसमें बचपन मतलब जस्ट लाइक 17 to 18 years जब वो थी, तो उसका कहीं पे हुआ था इंजीनियरिंग या समथिंग में, और वहां पर उसको किसी रीजन से छोड़ना पड़ा था कॉलेज. तो दैट टाइम करियर कॉन्शियस बच्चा जो होता है, उसका करियर वहां पे स्टॉप हो गया. तो उसकी वजह से उसमें डिप्रेशन आया. आफ्टर दैट सर वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन का मरीज हो गया, और डॉक्टर को जब दिखाया गया तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि एक केमिकल होता है जिसका जो रिसाव होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं. तो उनको एक मेडिसिन दी गई जिसको खाने के बाद वो बेटर फील करता है बच्चा. केमिकल रिलीज होना शुरू होता है. या सर, हाँ. तो सर अब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उसको ये फेज था 17-18 इयर्स में, जब करियर हम बनाते हैं, हम अपना बिल्डअप करते हैं, वहां पे वो बैकफुट हुआ, तो उसको ये एंजाइटी आया. तो वो टाइम में उसकी बॉडी का कोई एक ऐसा पोर्शन था जो वो डैमेज हो गया, वो केमिकल रिसाव देने के लिए, जिसकी वजह से ये केमिकल की कमी हुई जो मेडिसिन से पूरी हो रही है, या ये उसका
जेनेटिक था? First and the most important thing is like everything is genetic. It depends upon us that what we allow to trigger. Each and every person sitting here has a cancer, has a TB, has a heart attack, has all the diseases in the body, including you, including me. It only depends upon what we allow to trigger at a particular time. अब जो उसके दिमाग में से जो केमिकल्स बनना जो बंद हुआ, जो खुशी वाला जो केमिकल है वो जो बनना बंद हुआ, that was because her body went into so much fight mode that brain stopped producing that chemical probably, but it doesn't mean that her brain was dead or that part was dead. It is just that still she is having that anxiety or that fear because of which that particular part of the brain is still not activated. तो अगर वो सही तरीके से ट्रीटमेंट लेके, ट्रीटमेंट इन द सेंस थेरेपी लेके करती है, तो she can come out of this particular health issue very easily. How come you know, sir? She. आप ही ने बोला? No, sir. आप ही ने बोला मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, ये आपका वर्ड था. I always try to listen everything. Okay, yeah. अगर लड़का होता तो मेरा क्लाइंट बोलते हैं. हाँ, मेरा एक क्लाइंट बोलते हैं. ओके सर. तो या मुझे एकदम से ये ट्रिक किया, मैंने कहा सर आपने ये पकड़ा कैसे कि वो she है या he है? And secondly, I can tell you one thing. You must be having maximum female clients only. For depression. Depression या ना, and अगर आप आपका रेशियो देखोगे ना, हाँ. जनरली ऐसा होता है कि मेल्स के पास फीमेल क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं एंड फीमेल्स के पास मेल क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं. बट इन योर केस इफ यू सी द रेशियो, सर मेरे पास बराबर है दोनों. वेरी गुड. जेंट्स भी आते हैं, मतलब दे लर्न रेकी एंड ऑल प्रोसेस, मतलब जो भी रीडिंग एंड ऑल होते हैं सब लेते हैं. वेरी नाइस. तो बैलेंस की उसका बैलेंस हमेशा बनाए रखो. तो वो जो भी लड़की है आपकी, जो फ्रेंड है, स्टूडेंट है, जो भी है, उसको अगर आप मल्टीपल सेशंस कराते हो या एनएलपी का ये जो पार्ट्स इंटीग्रेशन भी अगर रेगुलर कराते हो तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प हर. व्हाट इज हर प्रेजेंट एज? ऑलमोस्ट 29. शादी हो गई? हाँ, वन बेबी. शादी की बैंड बजा दी होगी फिर तो जबरदस्त. इतनी सारी एंजाइटी देख के अगर शादी करेगी तो शादी की बैंड, शादी के साथ साथ हस्बैंड की भी बैंड बजेगी. मैं सर तभी तो मुझे पूरा केस पता है क्योंकि अपॉइंट मैं ही हुई थी. तो try to work on her. Probably she will need multiple sessions, and but she can come out of it. She needs a proper clinical hypnotherapy sessions. बोलना थोड़ा सा उसको मुश्किल जाएगा. आप रेकी दो उसको, एनएलपी करो, बट मैंने रेकी सिखाई दिया उसको. हमने वो सिखा के भी जब तक उसके दिमाग का वो जो बैठा हुआ है, अरे वो भयंकर कीड़ा होता है, भयंकर कीड़ा होता है वो हिप्नोथेरेपी से जाएगा. उसको प्रॉपर सेशंस लगेंगे तो वो जाएगा. बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू वर्क विथ हर क्लोजली ऑन व्हाटएवर थिंग्स यू आर डूइंग, एंड आई रियली प्रे कि वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाएगी. डोंट वरी. सो एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. बिफोर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ क्लिनिकल डिसऑर्डर, इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन इट, वरना फिर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है. और एक बार अगर डिसऑर्डर हो जाती है, एंजाइटी का डिसऑर्डर हो जाता है, देन यू आर प्रोन टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन्स, एंड मेडिसिन्स हैव लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट टेक मेडिसिन्स. इफ इट इज नीडेड, medicines are needed when they are needed, but try to live a life which is medicine free. जहाँ पर best possible हो, try to use alternative therapies, alternative methods. Try to calm your mind so that you are able to live a medicine free life. जितने बॉडी में सिंथेटिक मेडिसिन जाने से अच्छा अगर नेचुरल कुछ चीजें खा के ठीक हो सकता है, तो ट्राई टू improve your gut with natural foods instead of टेट्रा पैक के जूसेस पीने से अच्छा है एक सेब चबा के खाओ. That is much easier. But people prefer to go for a Tetra Pak, Appy, Fruity, Real Life juices, जिससे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होती है. Canned juices are never preferred. Try to go for normal things. And if you really want to have a healthy life, सुबह जल्दी 3:30-4 बजे उठ जाओ,
एक कप कुनकुने पानी में, एक ग्लास कुनकुने पानी में एक आधा चम्मच या 1 चम्मच घी डाल दो और पियो, आपके मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज निकल जाएंगे। घी खाने से मोटा नहीं होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आधा चम्मच 1 चम्मच घी डाल दो, आपके जिंदगी में कभी आपको रोमेटिक आर्थराइटिस नहीं होगा, और जिसको है उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट डू सर इट। मतलब खाली पेट में, मतलब खाली पेट में? खाली पेट में सुबह 3:30-4 बजे उठ के, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कर दो। ये नहीं कि घी रोज खाओ और बैठ जाओ, एक्सरसाइज करो। फिर वो घी दिखाई देने तो लगेगा। वो घी दिखाई देने लगेगा, फिर आप मुझे कोसोगे। उससे क्या, 7 बजे उठता वो भी ले सकते हैं ना, 7 बजे उठ के। 7 बजे उठ के फिर आपका दिन कैसे शुरू करते हो उस पर डिपेंड है। उसके बाद फिर आपको एटलीस्ट एक आधा पौन घंटा कुछ नहीं खाना पीना है। 7 बजे उठ के भी कर सकते हो, 4 बजे तो उठ के भी कर सकते हो। मैं तो सोता ही 4 बजे हूँ, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। सर आपका बॉडी क्लॉक मतलब वो शिफ्ट किया अलग पूरा, हाँ पूरा शिफ्ट कर कर दिया दिया। उसको, हाँ शिफ्ट कर दिया है। तो वो 4 बजे सोता हूँ, 7-7:30 बजे तक उठ जाता हूँ। सर इतनी कम नींद? हाँ 3-4 घंटे के लिए प्रोग्राम किया, एंड बाद में अगर दोपहर को टाइम मिला तो दोपहर को भी सो देता हूँ 1 आधा घंटा, कोई टेंशन सेम मेरा है सर, 4 से 5 घंटा, दोपहर में तो मस्त आधा घंटा 1 घंटा सोना है मुझे। सेम वेरी नाइस, वो होना ही चाहिए, क्योंकि दोपहर की नींद बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, नैप। बहुत पावर इंपॉर्टेंट नैप। होती है। कभी कभी 2-3 घंटे भी सो देता हूँ टाइम मिले तो, बट ट्राई टू वर्क आउट इन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। डोंट डू व्हाट आई डू एज आई से, बिकॉज आई हैव अ वेरी बैड लाइफस्टाइल। रात को 3:30-3 बजे तक जगना इज नॉट गुड, नॉट गुड। absolutely not good. Don't do it. I'm doing it because I was habitual for those things. After my surgery, things changed and I had to work in such a way कि body को इतना थकाओ कि लेटते ही नींद आ जाएगी, तो वो हैबिट पड़ गई। because while sleeping I can't turn this way, तो फिर वो सीधा लेटने के लिए बॉडी को प्रोग्राम करने के लिए जरूरी था। बट नाउ आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉडी क्लॉक को वैसे कर दिया है। बट यू डोंट फॉलो दिस नॉनसेंस प्रोसीजर, यू फॉलो अ नॉर्मल लाइफस्टाइल कि 10:30-11-12 बजे तक सो जाओ, 10:30-11 तक, ताकि सुबह अच्छी नींद हो जाए। सबके गट्स ठीक रहेंगे। एंजाइटी डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर NLP. NLP, again I would put it this way, NLP is not the end. What we have learned is not even 0.001% of NLP. Well, I have been practicing NLP past 2013 से लेके जो शुरू किया है, आज भी सीख रहा हूँ। बट एक बात पक्की है, जितना हमने सीखा है उतना ही NLP है। अगर भी मैंने कहा कि it is not even 0.001%, I said that because it depends upon how you apply the things. बट एक बात पक्की बोल सकता हूँ, जितना हमने सीखा है उतना ही NLP है, उसके अलावा NLP में कुछ नहीं है। Now it depends upon how you apply in various phases, what is your scope of work, where you want to apply, how you do it. आटा एक ही होता है, उस आटे के आप रोटी बनाओ, पूरी बनाओ, पराठा बनाओ, या आप पे डिपेंड है। आटा मलना कैसा है ये मैंने आपको सिखाया है, अब उस आटे में आप कितना पानी डाल के उसका पराठा बनाते हो या पूरी बनाते हो, ये आप पे डिपेंड है। आटा मलना आपको सिखा दिया मैंने। तो NLP के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं, जो मैंने सीखे थे, बाकी एडवांस में भी बाद में इसी को मैंने 10 बार रिपीट किया अलग अलग जाके नॉट ऑलमोस्ट I have spent not less than like 4.75 lakhs on NLP, but I'm happy for that because आज खुद के पैरों पे खड़ा हूँ उसकी वजह से। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको यूज कैसे करते हो। इफ यू आर एबल टू यूज इट इन द राइट वे, यू कैन मेक योर लाइफ बेटर। इसका नाम क्या है छोटे उस्ताद का? सर ओम, AUM। AUM, अच्छा नाम है, नाम को सूट भी करता है वो। तो आप NLP को सही तरीके से अगर यूज करोगे तो लाइफ में कहीं रुकोगे नहीं, दैट इज फॉर श्योर। नाउ देयर आर कोर्सेस सब जगह, ऑल इंडिया सब जगह कोर्सेज होते हैं।
कोई आपको ये भी बोलेगा अरे ये नहीं सीखा क्या, वो नहीं सीखा क्या, ये नहीं क्या, जो भी कोई कहता है, यू कैन आस्क देम सिंपल क्वेश्चंस कि आप एनएलपी होता क्या है ये पहले बताओ. Can anyone tell me what is NLP? I had told this on the first date. What is NLP? Sir, if I say their answer, they will say new launch product. New launch Because product. Exactly. yes. So, but what is NLP? अगर आप खुद बोलते हो, what is NLP? आपने क्या सीखा इतने दिनों में? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो डेफिनेशन मत बताओ मुझे. वो तो तो सर definition है. NLP इज दैट कि प्रेजेंटली हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, जिस पैरामीटर में हैं हम, उस पैरामीटर में कितना परसेंटेज हमें फायदा कर रहा है, कितना परसेंटेज हमको फायदा नहीं कर रहा है. थ्रू NLP हमारा जो प्रोग्रामिंग है हमारे बाइनरी सिस्टम का, हमारे बॉडी सेल्स का, उनको हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं उन सारी चीजों के लिए जो हमारे लिए हाईएस्ट गुड होते हैं और जिनकी वजह से हमें इश्यूज हो रहे हैं या हमारा जो भी बैड इम्प्रिंट है, जिसकी वजह से हमारा डेली रूटीन या हमारा करियर या हमारा स्पिरिचुअल लाइफ या हमारा पर्सनल लाइफ जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसको आगे ग्रोथ और एंड अवर हाईएस्ट गुड के लिए हम उसको इम्प्रिंट करके और अच्छा करते हैं. दैट इज NLP, न्यू प्रोग्रामिंग. So if I add one more point is, in a simple manner we say like etiquettes of keeping your health well. अगर मैं इसको फ्रेम करूं सिंपल सी, I have an answer, sir. Yes, please. It's basically you're manipulating your mind to get the desired result through visual, auditory, and kinesthetic way. You are using those things effectively to manipulate to get the desired result. All answers were 100% right because there is nothing right or nothing wrong in the world. But to make it more simple, NLP is whatever you are doing today is NLP. Sir, sorry to पहले दिन मैंने disturb you, sir. So पहले sorry दिन to मैं- disturb you. हाँ बोलो. Sir, can you answer like the common question? What is failure actually? What is failure? Yeah. Failure is a feedback. Yeah, It is just a Failure- feedback. it is just a Failure feedback. is a feedback. For example, Thank you. आप कभी सही लाइफ में फेल हुए हो क्या? Anyone who has failed in life? कौन से स्टैंडर्ड में? सर 9th में केमिस्ट्री में। में हुई थी. हाँ तो नहीं, फेल सॉरी 11th में हुई थी. 11th के फर्स्ट टर्म में फेल हुई थी और 12th में विद डिस्टिंक्शन पास हुई थी यूपी बोर्ड से. कभी भी आप फेल होते हो लाइफ में, मीन्स you have used certain system which was so perfect that it took towards the failure. It's not that you have not studied. आपने पढ़ाई की मगर वो पढ़ाई इस तरह से थी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको फेलियर का 100% रिजल्ट दिया उसने. Right. अगर आप उस पढ़ाई को फाइन ट्यून करते हो तो ठीक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप खाना बनाते हो, रोटी में वो आटे में पानी कितना डालना है, दैट इज प्रोबेबली अ फीडबैक फॉर यू कि आप 10 बार सपोज अगर आटे में पानी डालते हो तो आई विल नॉट से कि 10 के 10 बार आप फेल हुए. आई कैन पुट इट दिस वे कि पहली बार अगर आपका आटा पतला हुआ है तो प्रोबेबली यू लर्न अ टेक्निक दैट हाउ यू शुड नॉट प्रिपेयर द डो टू मेक अ रोटी. प्रोबेबली दैट डो वाज फिट फॉर पूरी, क्योंकि पूरी का आटा थोड़ा पतला होता है. पराठे का आटा पानी कम पड़ता है तो आटा गाढ़ा हो जाता है ज्यादा, उसमें भी पराठा नहीं बनता है, उसमें आपकी शंकरपाड़ी बनेगी दिवाली की. सो दैट इज ऑल्सो अ फीडबैक. नाउ इफ यू आर एडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर तो उसकी रोटी बनेगी. बट अगर उसी आटे में आप पानी इस तरह से डालते हो कि वो चिपचिपा बन जाता है थोड़ा सा आटा, तो उस डो का आप पराठा बना सकते हो ओवन में बेक करने के लिए. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, इट इज अ फीडबैक कि आपने क्या यूज किया है, कौन सर सी उसका ले ही बन जाएगा. हाँ. चिपका सकते हैं. हाँ, फिर आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो बुक चिपकाने के लिए. तो सर किसी ने कैसा एक छोटा सा आंसर ये भी दिया था, फेलियर इज समथिंग लाइक व्हेन यू नो दैट यू आर गोना फेल, सो वहां पे तुम बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो कन्विंस करने के लिए.
That is a pessimistic approach. Okay. Okay. Because suppose if I know that I'm going to fail, I have failed. बच्चों का स्कूल में कॉमन होता है, अगर मैथ्स के एग्जाम में फेल होके आया ना बच्चा घर पे, सबसे पहले बोलता है 20 बार का मैथ्स का पेपर इतना टफ था ना, क्लास में 35 में से 20 बच्चे फेल हो गए. फिर बाद में वो बोलेगा हाँ मेरा भी ऐसा ही हुआ है. So that is the excuse. That is the excuse for failure. So failure is Okay. nothing but it's a feedback. If you explain your child that yes, whatever has happened, you studied in such a way that you got only this much marks. It's not that you failed, you passed. But you passed out for the things which you had learned. जो सीखा ही नहीं वो तुमको नहीं आया. Simple. Right. So failure doesn't exist. It is always a feedback for you to improve in better way. Because sir, it connects with anxiety people think actually. Because people take failure to their heart. Failure Okay. की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है कि अरे अब दो क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा. हाँ, लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग. सर इसका एक सोल्यूशन है, बताऊं लोग क्या बताओ ना. कहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. लोग, आपको भगवान ने एक मुंह दिया है, 2 कान दिया है, 2 हाथ दिया है, और लोग बहुत ढेर सारे हैं जिनके बहुत ढेर सारे मुंह है, कान है. देन यूज योर बोथ हैंड एंड अपना दोनों कान बंद कर लो, किसी का मत सुनो, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो. सिंपल. वर्क्स. It works. दूसरा 100% इट वर्क. दूसरा ये भी है कि जो लोग बोलते हैं, बचपन से हम लोग अपने पेरेंट्स भी अपने को बोलते आते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो. बट देन दैट डजंट वर्क. क्योंकि जब आप एक कान से सुनते हो तो आपका दिमाग जो है वो उसको बीच में फिल्टर करता है, और दूसरे कान से जो निकालता है तो जो दिमाग में रह जाता है वो हमेशा के लिए रहता है. क्योंकि सर तो- आजकल मीडिया की टीआरपी बहुत डाउन हो चुकी है. पीपल बिकम स्मार्ट. So one should try to ignore the things. Try to use right filters so that you are able to make the things in a better way. Yes sir, agree. To live a healthy life, NLP is all about how you use the things, whatever programs you are imprinting in your child's mind, that makes your life easy, and it helps. Secondly, yes, I'm also coming up with a numerology workshop, which is specifically meant for people who are only and only interested in making the career in numerology, which will be covering medical numerology, which will be covering many aspects. I have not made any course content for that, and I will not be sharing any course content. जो ज्वाइन करेगा वो करेगा, and they will learn. क्योंकि कोर्स कंटेंट जैसे ही बनता है वैसे ही कोर्स शुरू होने से पहले दूसरा कोर्स कॉपी हो जाता है. Secondly, recordings will be shared, but I have kept a small principle in that. जिसका क्लास मिस होगा उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा. क्लास जो अटेंड करेगा उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगा. सिंपल. क्योंकि पीपल टेक इट लाइटली, चाहे फिर वो 1500 का कोर्स हो या मेरा 50,000 का मैं एनएलपी का कोर्स चलाता हूं वो भी हो. Only people who will attend the class will get that day's recording. If you are missing it, because people take it lightly, हाँ ठीक है मैं recording बाद में देख लूंगा. क्यों बाद में देखोगे? When you have spent your smartly earned money, hardly earned money, why you have to depend on the recording? लोगों के क्लास में जनरली उल्टा होता है कि अगर आपने क्लास मिस किया तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा. आई एम सेइंग दैट इफ यू आर मिसिंग द क्लास यू विल नॉट गेट द रिकॉर्डिंग. सिंपल. या फिर पहले बता दो कि हाँ सीरियस ये प्रॉब्लम है, बिकॉज कुछ चीजें प्री प्लान होती है ना कि हाँ मैं यहाँ जाने वाला हूँ, वहाँ जाने वाला हूँ, ये होगा वो होगा, पहले बता के रखते हो तो ठीक है. अचानक अगर सरप्राइज है कि नहीं आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास टुडे, प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग, देन आई एम वेरी सॉरी. वो मैं नहीं पहले के क्लासेस में भी नहीं दिए. We'll be covering medical numerology. We'll be covering name numerology. Name numerology, I'm not talking about chronology. Absolutely no. I'm talking about name numerology. I'm talking about alphabet placements. I'm talking about how exactly alphabets impact your life and what repercussions they give. We'll be covering live examples of celebrities
उनके डिकोड करने के साथ what exactly the things are and how they are happening, क्योंकि मैंने खुद डिकोड किए हुए हैं। एक रिसर्च पेपर बीच में पब्लिश किया था, वो भी आपको शेयर करूंगा, वैसे भी वो पब्लिकली अवेलेबल है, बट अगेन विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। फिर हाउ टू स्टार्ट योर न्यूमरोलॉजी बिजनेस, how to talk to clients, how to start your numerology business, how to make your reports in the right way, how exactly you should convince the client from step 1 to step 2। नेम एनालिसिस के लिए आया हुआ क्लाइंट नेम करेक्शन के लिए कैसे तैयार हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेम एनालिसिस आई चार्ज लाइक 1500 and नेम करेक्शन आई चार्ज 10,000 to 15,000 एनीथिंग। बाकी लोग कितना चार्ज करते हैं मुझे उस पर कोई कहना नहीं है, बट आई चार्ज दिस मच। तो this course will be definitely helpful for anyone who would love to join। Secondly, जब भी इसके recordings मिलेंगे, मैंने जैसा 2 दिन पहले भी कहा था, everything will be privately shared। Numerology के सारे courses, especially when it comes to name numerology, few lectures will be completely only available to you। वो सिर्फ आपके ही Gmail के ID से ओपन होंगे, बाकी कहीं वो ओपन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा भी हुआ है पहले कोर्स में। आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। 1,500 के कोर्स में एक ही मतलब 3 लोगों ने मिलकर पैसे भरे थे एंड वो किया था। अब ये मुझे पता कैसे चला, तो पता ऐसे चला कि जब मैंने लिंक शेयर किया, उसके बाद यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है यूट्यूब एनालिटिक्स का, जहाँ पे आप देख सकते हो जाके कि कौन कौन से शहर में ये खुला हुआ है। सिटी वाइज देख सकते हो कि ये वीडियो किस सिटी में कितने बजे देखा गया है, उससे पता चलता है। एंड जब ये ट्रैक किया तो ये पता चला कि ये इस सिटी में ये 3 लोग थे और इसमें से ये किसी ने शेयर किया। सो आई हैव लर्न फ्यू लेसन्स आउट ऑफ इट कि किस तरह से करना चाहिए, क्या नहीं करना, बिकॉज पीपल डू इट। मतलब 1,500 के कोर्स में 3 लोग पैसे भर के इस इंटेंशन से कि हाँ तू कर दे, फिर मैं भी देखूंगा, ये वीडियो हम तीनों मिलकर शेयर करेंगे। That doesn't solve the purpose। And वो लोगों को लगता है कि पता नहीं चलेगा, बट टेक्नोलॉजी हैज बीन क्वाइट एडवांस। मैंने खुद 23 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काम किया है एंड आई नो दिस हिट। यूट्यूब में जाके आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन से लोकेशन पे कितने टाइम पे किसने देखा है, इट शोज यू। तो वहां से पता चलता है कि किसने क्या क्या किया है। तो इस तरह से ये कोर्स 24 तारीख से शुरू हो रहा है, हफ्ते में 4 दिन होगा। टाइमिंग इसका शाम को 8 से 9 ही है, रात को नहीं होगा, क्योंकि रात को दूसरा हिप्नोथेरेपी का वगैरह बैच में लॉन्च करने का प्लान कर रहा हूँ। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग किया है, दे हैव स्पेसिफिकली टोल्ड मी दैट दे वांट दिस टाइम। तो 8 to 9 यहाँ पे है। यहाँ पे हाँ दो लोगों ने यहाँ के बुक किया हुआ है, और भी जो करना चाहेंगे वो बाद में कर सकते हैं। फीस उसकी ओनली 10,500। कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिलेगा। फॉरगेट अबाउट कि मैंने ये बोला ये नहीं मिलेगा। अटेंड करने के बाद सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स मिलेंगे एंड बट यही है कि रिकॉर्डिंग का कुछ फायदा नहीं होता है। इफ यू आर अटेंडिंग इट, यू आर अटेंडिंग इट, और एल्स रिकॉर्डिंग्स डोंट वर्क, क्योंकि जो यहाँ बैठ के नहीं होता है वो वहाँ बैठ के क्या करेगा। सो एनीवन हु वांट्स टू जॉइन कैन डेफिनेटली आल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, राइट फ्रॉम मेकिंग योर FB पेज, एवरीथिंग विल बी कवरिंग। किस तरह से खुद को प्रमोट करना है, क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा। सो दिस वाज रियली एन अमेजिंग जर्नी विद एवरीवन। बहुत अच्छा लगा मुझे। Sir, I have a question. बिल्कुल। सर मेरा भी दो। Sir, can I go? Can I leave now? अच्छा, you want to leave? ठीक है, perfect. It's my bedtime now. Absolutely, yes. Thank you so much, sir. Welcome and have a blessed life, Rita. Thank you. Okay. हाँ सर। हाँ, नया। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने भी हमने अभी तक एक्सरसाइज किए हैं, उनका ट्रॉमा रिलीज करने के लिए, एंजाइटी हटाने के लिए, जो डर है, जो भी ग्रेजेस है, सारी चीजों को हटाने के लिए। सपोज एक फैमिली है, उनके बीच हार्मोनी नहीं है, ठीक है, लाइक फैमिली 4 फैमिली मेंबर्स हैं, पापा मम्मी एंड 2 किड्स, ओके। तो उनके बीच हार्मोनी नहीं है
और इस हार्मोनी में सपोज जो जेंट्स है, ही इज नॉट रियलाइजिंग दैट कि उसके इस नेचर की वजह से उसके घर पे इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज सर ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पे आदमी का नेचर इतना रिजिड होता है कि जो मैंने कह दिया दिस इज अ लकीर, इसके आगे नहीं जाना है, राइट। तो वहां पे वाइफ कुछ नहीं कर सकती है, और वहां पर बच्चे जो हैं वो एक डेडलाइन के बाद आगे क्रॉस नहीं करते हैं, तो वहां पे वो उनका एक परसेप्शन बन जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, देन वो हार्मोनी जो होती है सर वो नहीं बनती है, लाइक तो इस टाइप से सर अगर ऐसा कुछ है, या सपोज कोई ग्रेजेस है जो हस्बैंड या वाइफ के बीच में है जो बच्चों पे इम्पैक्ट कर रहा है, सर उन चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे थ्रू Tell एनएलपी? me which exercise you will use. सॉरी You tell me which exercise you will use and how will you do it. मैंने सर आपको या सर अकॉर्डिंग टू मी देखिए सर, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम यूज करेंगे तो वी विल यूज स्पिन व्हील वाला फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसका स्टार्टिंग है उन चीजों को आपने करके, देन आफ्टर मिरर वाला। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, यस सर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर ये है कि आप वॉल्ट डिज्नी वाला जो एक्सरसाइज है इंडिविजुअल बिठा के करो ना, किसका क्या क्या है, बिकॉज व्हेन यू से दैट माय फादर इज नॉट हेल्पिंग, माय हस्बैंड इज नॉट डूइंग दिस, माय वो चेयर वाली, हाँ ओके सर, वो सबसे पहले करवाओ, ओके एंड देन गो बैक फॉर ऑल अदर थिंग्स, क्योंकि हो सकता है ये उसकी कहानी है आपको जो बता रहे वो। People always try to tell one side of the story. What about the other side? तो हर पर्सन के लिए अलग अलग हमें सेशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल सेशन लेना पड़ेगा, so that you can also earn in that way. एंड सर जो ये जो एक्सरसाइज है चेयर वाली, हम्म। सपोज अगर हम किसी एक फैमिली मेंबर को सामने बिठा के हम कर रहे हैं, एंड दैट टाइम इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो अनबायस्ड ही हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, 2 बार करो, 3 बार हाँ करो। 2 बार 3 बार, या सर ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उसको गाइडेड करवाएं कि नाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट इमेजिन कि वो क्या बोल रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इन योर माइंड, Do it guided. Do it just think guided so about that you in can your get mind. money. या सर, एंड देन एक बात जस्ट सिट, हमेशा ध्यान में रखो, फाइनल आउटकम शुड बी दैट योर बिजनेस शुड रन। या सर, गाइडेड जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, सर वो आपसे कनेक्शन बनता है, हाँ वो करना है, कनेक्ट होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। because मैंने आपको जब वो टेक्निक सिखाई, उसको आप आपके वर्ड्स में गाइडेड कर सकते हो, so that it gives you better results and also connection with the client, so that next time he says कि हाँ और 1-2 सेशंस कर आप ही करवाओ, राइट सर, क्योंकि जब हम उसको खुद बोलेंगे तो सर वो खुद ही करेगा, तो हमारे पास क्यों आएगा, हाँ, वही आपको गाइडेड कराना, मैंने आपको ये सिखाया, राइट सर, मीन कि आप उसको ये सिखा दो, आप ये हाँ, करवाओ, क्योंकि हम हर बार जब अपना एक कमांड चेंज करेंगे ना, तो सर वो समझ नहीं पाएगा कि हमें कब क्या करना है, यस देन वी